Good morning students, Jai Hind to all and welcome again in your maths class. Now students, today we will do a revision exercise in our maths book. Okay, beta in our maths book after page number 152, जहाँ पे भी हमारा बुक का पेज नंबर 152 है, इसके बाद बेटा देयर इज अ प्रैक्टिस सेक्शन. यहाँ पर प्रैक्टिस सेक्शन दिया हुआ है. देयर आर लॉट्स ऑफ वर्कशीट ऑफ एवरी यूनिट्स. यहाँ पर बेटा बहुत सारी यूनिट्स की एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, रिवीजन एक्सरसाइज. सो टुडे वी विल डू अ रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 5 नंबर्स बियॉन्ड 100 एट पेज नंबर 25. ओके, सो ओपन पेज नंबर 25. बेटा दिस इज पेज नंबर 25. पेज नंबर 25. Unit 5 numbers beyond 100. Okay, so today we will do revision exercise. Okay, so firstly write down the date beta, and today is 25th September 2020 and day is Friday. Beta this is your revision test 3. Okay, beta I will explain you all the questions from 1 to 9 and there is a mental maths. Okay, I will explain you all the questions. You have to do all the questions yourself as a test. Okay बेटा, जैसे पहले करा था आपने शेप्स यूनिट में, सेम ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद सॉल्व करके लिखने हैं. फाइन बेटा. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1. राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग. बेटा in this question we have to do numbers according to these blocks. Okay, हमें इन ब्लॉक्स को अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस काउंट करके यहाँ पे लिखना है. फाइन बेटा, आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल. ओके, सी हियर बेटा, मैंने यहाँ पे 100 प्लेस पे 100 ब्लॉक्स का 1 ग्रिड बनाई है. यहाँ पे 10 प्लेस पे मैंने 10 ब्लॉक्स की 2 ग्रिड्स बनाई है. एंड यहाँ पे मैंने बेटा 1 प्लेस पे 3 बॉक्सेस बनाए हैं. सो वी हैव टू राइट डाउन अकॉर्डिंग टू दिस. ओके बेटा, इन 1 प्लेस देयर इज अ 1 2 3. सो आई हैव टू राइट डाउन हियर 3. Okay, in tens place beta there is a 110 and 210, so there is a beta 2 number. Okay, in 100 place beta there is a 1 grid of 100 number, so I have to write down here 100 क्योंकि 1 बॉक्स है ना यहाँ सिर्फ, so हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा 1 नंबर. so answer is 100, 2 tens and 3 ones. Okay beta, so according to this we have to write down here there is a 5, so 5 ones, 1 2 3 4 4 tens and there is a 1 2 hundreds. Okay beta, now next question beta, B part, we have to count these beads and write down here number. Okay, like 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 1 2 3 4 5 6 7. Okay beta, you have to do these 3 parts. Okay, now question number 2 beta. Beta, in the question number 2, write the numerals for each of the following. That means बेटा हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर्स नेम्स दिए हुए हैं, इन नंबर नेम्स का न्यूमेरल लिखना है. ठीक है, लाइक बेटा आई हैव टेकन एग्जाम्पल 611. सो आई विल राइट डाउन हियर अकॉर्डिंग टू दिस 611. Okay, so you have to write down here 535. Okay, fine beta, you have to do all these questions. Now question number 3 beta, write each of the following numbers in words. Okay, in this question beta we have to write down the number names. यहाँ पे न्यूमेरल्स दिए गए हैं, हमें इन न्यूमेरल्स को नंबर नेम्स में लिखना है. ओके, लाइक आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल 221. ओके, सो मैं इसको कैसे लिखूंगी बेटा, 200 21 21. Okay beta, so you have to complete do these 3 parts in number names. Okay, now turn the page. Now beta, read the question number 4. Write the expanded form of each of the following.
दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ओके एंड बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स. दैट मीन्स बेटा किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यूज का सम एक्सपेंडेड फॉर्म होता है. ओके सी दिस एग्जाम्पल बेटा 296. सो आई हैव टू राइट डाउन इट अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडेड फॉर्म लाइक HTO 200. So 200 then plus 9 tens that means 90 then plus 6 ones that means beta 6. So this is the expanded form of this number. Okay beta understood. So हमें इसी तरह से इन डिजिट्स को यहाँ पे सेपरेट करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ठीक है बेटा. Now you have to do these two parts same. Now read the question number 5 beta. Write the short form of each of the following. Okay, there is the question 500 plus 50 plus 6. That means beta in this question we have to write down the expanded form into the short form. Okay, बेटा ये जो है यहाँ पे expanded form में दिया गया है नंबर्स को हमें अब इसका यहाँ पे short form लिखना है. That means it is the opposite of expanded form. एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने क्या किया था इस नंबर को हमने चेंज करके यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था लाइक एस. ओके और अब हमें शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है बेटा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें चेंज करके शॉर्ट फॉर्म में लिखना है सेम लाइक एस. ओके बेटा. नाउ बेटा सी दिस एग्जांपल देयर इज अ नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म 600 प्लस 30 प्लस 5. ये एक्सपेंडेड फॉर्म में एक नंबर लिखा हुआ है. अब हमें इसको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में. ओके तो 600 HTO according to their place beta 600. So I will write down here 6 and 30. Okay that means tens place. So 3 tens and there is a 5 ones. So this is the short form of this number. Okay beta. So you have to write down these questions. Now beta read the question number 6. Write the place value of each digit in the following numbers. दैट मीन्स बेटा यहाँ पे हमें जो नंबर दिया हुआ है इनकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस. ओके नाउ सी द एग्जांपल बेटा. देयर इज अ नंबर 932. ओके एंड अकॉर्डिंग टू HTO अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस द प्लेस वैल्यू ऑफ 2. ओके 2 ones दैट मीन्स बेटा 2. ओके प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की क्या हो जाएगी बेटा 2. सो वी हैव टू राइट डाउन 2. Now in tens place beta there is a 3 number. So place value of 3 tens. Okay 3 tens that means beta 3 then we have to write down here 10 because beta यहाँ पे tens है यहाँ पे 1 digit है so we have to write down here 0. Okay now next 900. Okay so place value of 900 that means beta 900. ओके और वी हैव टू लाइक दिस 9 के बाद यहाँ पे बेटा 2 डिजिट्स है सो वी हैव टू राइट डाउन हियर 20. ओके सो प्लेस वैल्यू ऑफ 932 इज 2 ones 3 tens 900. ओके सो यू हैव टू राइट डाउन दीज 2 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न. ओके बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. रीड द क्वेश्चन नंबर 7 बेटा. राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. दैट मीन्स बेटा यहाँ पे हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. दैट मीन्स सबसे पहले स्मॉल नंबर देन उससे बिग नंबर फिर उससे बिग नंबर एंड लास्ट में ग्रेटर नंबर. फाइन बेटा. नाउ बेटा सी दिस एग्जांपल वी हैव टू राइट डाउन दिस इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके सो इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्टली आई विल राइट डाउन हियर स्मॉलेस्ट नंबर. ओके एंड इन दिस नंबर 5 3 4 2 which is the smallest number beta 2 that means 200. So I will write down here 2. Okay then next number is beta 300. 2 से big number कौन सा है बेटा 3 so 300. Okay and after that beta 400. Okay and then 500. Okay fine beta. Now beta read the question number 8. Write the following in descending order.
दैट मीन्स बेटा इट इज द अपोजिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. फाइन. नाउ सी द एग्जाम्पल बेटा. आई विल एक्सप्लेन यू विद द सेम एग्जाम्पल. ओके. नाउ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हम जब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे बिग नंबर. ओके. एंड बिग नंबर इज 500. ओके. देन बेटा 5 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 4. सो 400. देन 300. and next is 200. So beta this is the opposite of this ascending order. Okay, fine beta. Read the question number 9. Form the greatest and the smallest 3-digit numbers using the digits 5, 8 and 2. That means बेटा यहाँ पे हमें 3 digits दी गई हैं 5, 8 and 2. हमें इन 3 digits से एक greatest number बनाना है और एक smallest number बनाना है. Okay, now see the example beta. I have taken here 3 digit 6, 9 and 3. Okay, so मैं इन 3 digits से यहाँ पे greatest number बनाऊंगी और greatest number बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? सबसे पहले big number लिखना पड़ता है, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. Okay, now in this 3 digit बेटा 9 is the biggest number, so I will write down here 9. ठीक है. उसके बाद बेटा 6 and 3. This is a big number na, so I will write down here 6. Okay, now 3. Now beta this is the greatest number. Okay, ये greatest number बन गया है इन 3 digits के थ्रू. Okay, now हमें इसको क्या करना है? smallest number बनाना है. अब smallest number बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें छोटा नंबर लेना है, यानी कि small number. Okay, so I will write down here 3. Okay, fine. अब 3 के बाद बेटा 6 and 9 में कौन सा छोटा नंबर है? 6. So I will write down here 6 and 9 in the last. So 369 is the smallest number. Okay, fine beta. So according to this pattern you have to do this question number 9. Okay beta. Now read the beta question number 1 in mental maths. Okay, complete the number strips. आपको यहाँ पे इस नंबर स्ट्रिप्स को कंप्लीट करना है. दैट मीन्स बेटा these are the forward countings like 245, 246, then and next number is 247. Okay, so you have to complete these two. Now next page beta, this is the question number 2. Write the even numbers in between a part 413 and 423. Okay, and second is 811 and 821. That means बेटा आपको 413 से लेकर 423 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं. फाइन बेटा. एंड क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, राइट द ऑड नंबर्स इन बिटवीन 560 से लेकर 570 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं. ठीक है, सेम ऐसे आपको बी पार्ट करना है. ठीक है. नाउ सी द एग्जाम्पल बेटा. इवन नंबर्स बेटा, इवन नंबर्स क्या होते हैं? जब किसी भी नंबर के पीछे दैट मीन्स वंस डिजिट पे अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 नंबर आ जाते हैं तो वो इवन नंबर कहलाते हैं. ठीक है. एंड ऑड नंबर बेटा, अगर किसी भी डिजिट्स के वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 एंड 9 नंबर आ जाते हैं तो वो ऑड नंबर कहलाते हैं. लाइक बेटा 636. Okay, so in ones place beta HTO, in ones place there is a 6 number, so this is even number. Okay, and I have taken a number 7, 5, 9. Okay, in ones place beta there is a 9 number, so this is odd number. Okay, so beta we have to write down the even numbers between 413 to 423. Okay, हमें काउंटिंग करनी है 413 से लेकर 420 तक और इसके बीच में जो भी हमारे इवन नंबर है हमें यहाँ लिखने हैं. लाइक बेटा 413 there is a 3 number, so this is not even number, this is odd number. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है बेटा 414. अब 414 में वन डिजिट पे बेटा कौन सा नंबर है 4 एंड 100 पे भी 4 है, लेकिन हमने सिर्फ वन डिजिट देखना है. अब 414 में वन डिजिट पे अगर 4 होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा इवन नंबर. लाइक
सो हमको इस तरह से सिर्फ इवन नंबर लिखना है बेटा, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, we have to write down the odd number between 560 to 570, okay, and there is the 560 0 on one's place, so this is a even number, लेकिन हमें even number नहीं लिखना, हमें odd number लिखना है। so 560 के बाद next number बेटा हमारा कौन सा होता है, 561, and 561 in one's place 1, so this is the odd number, okay, fine बेटा। so you have to write down like this. Now read the question number 4 बेटा, write a number bigger than 314, okay, हमें यहाँ पे इस ब्लॉक में क्या करना है बेटा, 314 से एक बिग नंबर लिखना है। अब बिग नंबर क्या होता है 314 के बाद बेटा, दैट मीन्स आफ्टर नंबर। 314 से बिग नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 315। सो बेटा आपको यहाँ पे बिगर नंबर लिखना है, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, राइट अ नंबर स्मॉलर देन 200, ओके, एंड 220। यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, स्मॉलर नंबर लिखना है, दैट मीन्स व्हाट कम्स बिफोर 200 से वन नंबर स्मॉल, ओके, लाइक 199, फाइन बेटा। सो बेटा यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू हियर क्वेश्चन नंबर 5 in mental maths, okay. So beta you have to complete all these questions 1 to 9, okay, and mental maths 1 to 5, okay बेटा। आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर की भेजूंगी और आपके पेरेंट्स आपको मार्क्स देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ओके बेटा। नाउ बेटा आई वांट टू टेल यू, अगर आपकी बुक के अंदर कोई भी क्वेश्चन मेरी बुक से सेम नहीं मैच हो रहा है तो आप उसको अपने बुक के अकॉर्डिंग करेंगे, ओके, क्योंकि बेटा इन लास्ट यूनिट 4 शेप्स में मैंने देखा कि कुछ बुक्स में डिफरेंट था, ठीक है। सो आपको अगर इस बार भी कुछ क्वेश्चंस अगर डिफरेंट होते हैं तो वो आप अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग करेंगे, आप वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। ओके नाउ बेटा यू हैव टू रिवाइज दिस यूनिट अगेन, ओके। मैं आपको नेक्स्ट डे यानी कि कल आपका मैं दोबारा से इसी यूनिट का ही टेस्ट लूंगी, ठीक है। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ यूनिट 5, ओके बेटा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू, बाय बाय।